آج ویو 360 میں امریکہ اور چین کے تعلقات کس نہج پر، پاکستان اور خطے پر دنیا کی دو بڑی طاقتوں کے درمیان کشیدگی کا کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ ماہرین صحت کی ہدایت کے باوجود ارلی ووٹ ڈالنے والے امریکی گھنٹوں لائنز میں کیوں کھڑے ہیں؟ بارش کو ریکارڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس رین گیجز ہوتے ہیں، اور آپ کو دکھائیں گے کہ پاکستان میں محکمہ موسمیات بارش کی مقدار کیسے ماپتا ہے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ دنیا کی دو بڑی اقتصادی طاقتوں یعنی چین اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کو کچھ ماہرین دونوں ممالک کے تعلقات کا بدترین دور کہہ رہے ہیں۔ اس سال اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں اجلاس میں کورونا کی عالمی وبا کے پس منظر میں دونوں ممالک کی ایک دوسرے پر تنقید اس تناؤ کی ایک تازہ ترین مثال تھی۔ We will distribute a vaccine. We will defeat the virus. ہم ویکسین فراہم کریں گے، وائرس کو شکست دیں گے، اس وبا کو ختم کر کے بے مثال خوشحالی، تعاون اور امن کے ایک نئے دور میں داخل ہوں گے۔ لیکن اس روشن مستقبل کی تلاش کے ساتھ ہی ہمیں اس ملک کو مورود الزام بھی ٹھہرانا چاہیے جس نے اس وبا کو دنیا پر مسلط کیا، یعنی چین۔ اس مسئلے کو سیاسی رنگ دینے یا اس کی بدنامی کو کسی ملک سے جوڑنے کی ہر کوشش کو رد کرنا چاہیے۔ اس وائرس سے مقابلے کے لیے ہمیں جامع اور طویل مدتی اقدامات کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو 1949 میں کمیونسٹ چین کے معرض وجود میں آنے کے بعد امریکہ نے تائیوان میں جلا وطن ہونے والے چینی رہنماؤں کے لیے حمایت جاری رکھی۔ یہ ایک بڑی وجہ تھی کہ امریکہ اور چین کے درمیان باقاعدہ سفارتی تعلقات 1971 میں یعنی چین کی آزادی کے 22 سال کے بعد قائم ہوئے۔ تب سے دونوں ممالک کے تعلقات میں اکثر و بیشتر سرد مہری ہی نظر آتی ہے۔ صدر ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد تجارتی میدان میں اختلافات شدید ہوئے۔ ہانگ کانگ اور ساؤتھ چائنا سی کے علاوہ دوسرے کئی معاملات پر بھی چین اور امریکہ کے اختلافات اپنے عروج پر ہیں۔ شو کی پہلی رپورٹ میں آئیے جانتے ہیں کہ کیوں کچھ ماہرین کے خیال میں تعلقات کا یہ تناؤ چین کی طرف امریکی پالیسی کی ناکامی ظاہر کرتا ہے۔ چین کی معاشی طاقت نے جغرافیائی سیاست میں اس کا پلڑا بھاری کر دیا ہے اور چینی رہنما زی جن پنگ بیجنگ کی سربراہی میں چین کا واضح ہدف امریکہ کی طاقت اور عالمی اثر و رسوخ کی جگہ لے لینا ہے اور عالمی نظام یا ورلڈ آرڈر کو نئی شکل دینا ہے۔ 3 اشرے قبل امریکہ نے اس امید کے ساتھ چین کو عالمی تجارتی تنظیم میں شامل کروانے میں مدد کی تھی کہ چین کی تجارت میں اضافہ وہاں جمہوریت کے پھنپنے کا باعث بن سکے گا۔ ہم نے سوچا کہ جب چین کے ساتھ تجارت میں اضافہ ہوگا تو آزاد تجارت کے ساتھ کمیونسٹ حکومت کی عدم مطابقت بنیادی طور پر ان کے طرز عمل میں تبدیلی کا سبب بنے گی۔ ریٹائرڈ جنرل جیمز جونز کے مطابق یہ توقع نہ صرف بے فائدہ ثابت ہوئی بلکہ اس سے غیر متوقع نتائج بھی پیدا ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ چین نے چوری چکاری اور امریکی اور مغربی سلامتی کو نقصان پہنچا کر ترقی کی منازل طے کی۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ سائبر سپیس میں املاک دانش یعنی انٹلیکچوئل پراپرٹیز کی چوری کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ چین خود کو نرم مزاج ملک کے طور پر پیش کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے کہ اس کے کام نیک نیتی پر مبنی ہے، لیکن ہمیں دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ نیٹو کے سابق سپریم کمانڈر جنرل ویسلی کلارک کا کہنا ہے کہ چین کا مقصد امریکہ کے طویل مدتی حفاظتی اتحادوں کو کمزور کرنا بھی ہے۔ ابھی چین اور اس کے صدر اپنے ہی پڑوس بحر الکاہل کے خطے اور اس سے بھی زیادہ تائیوان پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ بحر الکاہل کے خطے میں آج جو مسئلہ میں سب سے زیادہ سنتا ہوں وہ تائیوان کا ہے، کیونکہ ایک معاہدے کے تحت امریکہ تائیوان کو تسلیم کرنے کے اپنے فیصلے سے دستبردار ہو گیا تھا اور ہم نے وعدہ کیا تھا کہ تائیوان کا مسئلہ زور زبردستی سے حل نہیں کیا جائے گا، لیکن مسٹر جی نے اس معاہدے کا پاس نہیں کیا ہے۔ بحیرہ جنوبی چین میں آپ کو ایک حادثاتی کشیدگی نظر آ سکتی ہے۔ ظاہر ہے ہم وہاں بحری جہازوں کی آمد و رفت کی آزادی کو بین الاقوامی قانون کے مطابق قائم رکھنے کے لیے واضح طور پر سنجیدہ ہیں۔ چین کا اصرار ہے کہ جنوبی بحیرہ چین میں امریکہ جارحیت پسند ہے اور تائیوان کے ساتھ اس کے تعلقات ایک داخلی مسئلہ ہے جس میں واشنگٹن کو کوئی کردار ادا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن واشنگٹن اور چین کے مابین بڑھتا ہوا تناؤ اور تائیوان کے معاملے پر توجہ کے بارے میں نیٹو کے سابق کمانڈر کہتے ہیں کہ صورتحال ویسی ہی غیر متوقع ہے جیسے کہ سرد جنگ کے دور میں تھی۔
सोवियत यूनियन जानता था कि अगर वो जर्मनी के दरमियान सरहद अबूर करते हैं तो वहां लड़ाई होगी, लेकिन उस वक्त हमने कभी नहीं कहा था कि कब ये मामला जौहरी हथियारों के इस्तेमाल की जानिब बढ़ेगा। आज हम फिजा, जमीन, खला, समुंदर और साइबर स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं और ये बहुत खतरनाक है। मैरियालिस के साथ इरम अब्बासी, वॉइस ऑफ अमेरिका। आलमी बर्तरी के लिए चीन और अमेरिका की मुसाबकत का मतलब बाकी की दुनिया और ख़ासतौर पर जनूबी एशियाई खित्ते के लिए क्या है? कई अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ और मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूशन जैसे थिंक टैंक से मुंसलिक सैयद मोहम्मद अली की राय में पाकिस्तान को चीन के साथ अपने ताल्लुकात की नौइयत पर नजरसानी की ज़रूरत है। वॉइस ऑफ अमेरिका की इरम अब्बासी ने जब उनसे पूछा कि व्हाइट हाउस की जानिब से ताइवान को चीन के खिलाफ दिफा के लिए हथियारों की फ़रोख्त का जो मामला है उससे पहले से कशीदा ताल्लुकात पर क्या असर पड़ सकता है? इस वक्त चाइना में और बाकी दुनिया में भी सबको पता है कि इस वक्त अमेरिका से जो खास तौर पे रेट्रिक निकल रहा है दोनों साइड से, वो कुछ जरा ज़्यादा गुस्सीला है और वो एक उसकी अपनी एक मजबूरी है कि अभी इलेक्शन है तो एक साइड ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो अपने आप को चाइना पर वीक दिखाए। मगर ये है कि दोनों साइडों में इस वक्त डेमोक्रेट्स भी जो हैं अमेरिका में, वो भी ये पहचानते हैं, उनको ये एहसास है कि ये स्ट्रेटेजिक राइवलरी जो है दुनिया में सबसे दो ताकतवर ममालिक हैं, या वो अमेरिका है या फिर उसके साथ चाइना है। तो उनको ये तो पता ही है कि दोनों साइडों को कि ये आकर जो भी हुकूमत आएगी आगे, उनका मसला तो होगा। ये बताइए कि अमेरिका और मगरबी ममालिक की जानिब से चीन के खिलाफ साइबर हमलों के इल्जामात और खदशात ये कितने संजीदा हैं? ये संजीदा इस तरह है कि जी अब आप देखिए कि कनाडा जैसा मुल्क, ब्रिटानिया जैसा मुल्क, बल्कि ब्रिटानिया में तो ब्रेग्जिट के बाद उनको और ज़्यादा मज़ीद ज़रूरत थी कि वो चीन के साथ अपनी दोस्ती को मज़ीद बढ़ाएं। मगर अब ये इकोनॉमिक सतह पर, और ये इसमें अमेरिका की भी बहुत इन्फ्लुएंस शामिल है और कुछ खदशात हैं भी। अब ये जो 4th जनरेशन सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, तो उसमें ये नहीं कि ये सिर्फ रूमर है या सस्पिशन है और इसके अंदर कोई सब्सटेंस नहीं है। खदशात हैं अपनी जगह, मगर वो सिर्फ चीन नहीं कर रहा, वो बाकी भी सारे ममालिक ये करते हैं। मगर फिर इसमें यह है कि साथ साथ ऑस्ट्रेलिया को भी खदशा है, कनाडा को है, इंग्लैंड को है। तो अब ये कशीदगी कितनी को बढ़ेगी और ये और कहां जाएगी? अमेरिका के साथ जो ट्रेड वॉर है, अब ये क्या ट्रेड डील में बदलेगी? तो ये देखने वाली चीजें हैं और हाँ, इनकी बहुत आगे जाकर अहम इम्प्लिकेशंस होंगी। अमेरिका और चीन के दरमियान जो कशीदगी है, इसका खसूसन जनूबी एशियाई खित्ते या पाकिस्तान पर या पाकिस्तान के चीन के साथ ताल्लुकात पर क्या असर पड़ सकता है? बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा जी। बल्कि पाकिस्तान बिलखसूस वो जो कहते हैं ना, सैंडविच बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है। बिकॉज देखिए, हमने तो इंडिया ने तो जो है वो 50s की दहाई में और नेहरू के ज़माने में उन्होंने तो कह दिया था कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में हम हैं। पाकिस्तान ने तो फौरन सीटो, सेंटो, बगदाद पैक्ट, इन सब मुआहिदों को ज्वाइन करके अमेरिका के साथ दोस्ती हमने बढ़ाई। साथ साथ हमने चीन के साथ दोस्ती रखी। जो 60s की दहाई में जब इनकी आपस में लड़ाई हुई इंडिया और चाइना की, तो फिर चाइना हमारा बेस्ट फ्रेंड बन गया। अमेरिका को तो ये कंसर्न है कि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल चीन की तरफ चला जाएगा। हम ये पिछले 8, 10, 15 सालों में जो कशीदगी अमेरिका के साथ जब बढ़ती थी, तो हम चीन की तरफ हाथ बढ़ाते थे। फिर ग्वादर अथॉरिटी को हैंड ओवर कर दिया, फिर सीपैक का प्रोजेक्ट बन गया। तो अब ये जो, और साथ साथ इंडिया के साथ अमेरिका की दोस्ती बढ़ती जा रही है। तो अब क्या हमारा मुल्क जो है पाकिस्तान का, क्या वो ये बैलेंसिंग एक्ट कर सकेगा कि अमेरिका से इतनी पुरानी और ज़रूरी जो है अपनी दोस्ती समझ लीजिए या ताल्लुकात, वो उनको क्या छोड़कर चीन के कैंप में जाएगा? तो ये एक बड़ा फाइन बैलेंसिंग एक्ट है। और जो हम हर क्या पॉलिसी को चीन की इंडोर्स करना चाहते हैं, अभी तो हमने कर दी ना हांगकांग में, अब जनरल असेंबली में हमारे UN परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने, हम कश्मीर पे तो इतना हमें गमो गुस्सा है, तो हमने जो हांगकांग की बात हुई तो हमने कहा वो तो उनका टूट अंग है,
تقریباً ہم نے وہی زبان استعمال کی جو انڈیا کشمیر کے لیے استعمال کرتا ہے. سو یہ دشواریاں ہیں اس وقت. امریکہ، پاکستان اور خطے بھر کی اہم خبروں، غیر جانبدار تجزیوں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. اگر ویب سائٹ لوڈ نہیں ہو رہی تو آپ ہمارے فیس بک پیج facebook.com/VOA اردو پر آ سکتے ہیں. ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. اور اب بات امریکی صدارتی انتخابات کی. 2020 کے صدارتی انتخابات ویسے بھی کافی اہم ہے اور صدارتی انتخابات کے لیے ارلی ووٹنگ چاہے وہ انتخابات سے پہلے خود ذاتی طور پر جا کر ووٹ ڈالنے کی شکل میں ہو یا بذریعہ ڈاک غیر معمولی سطح پر جاری ہے. عوام تک فوری طور پر ووٹنگ اعداد و شمار پہنچانے کے لیے کام کرنے والے ایک غیر منافع بخش ادارے US الیکشن پروجیکٹ کے مطابق اس بار امریکی ووٹرز ریکارڈ تعداد میں قبل از انتخابات یا ارلی ووٹنگ کی سہولت کا استعمال کریں گے. امریکہ کے مختلف حصوں سے ارلی ووٹنگ کے لیے طویل قطاروں کی خبریں سامنے آ رہی ہیں. وائس آف امریکہ کے عمران جدون ایسے ہی علاقے کے ایک پولنگ سینٹر پر پہنچے. ووٹ ڈالنے کے لیے طویل قطاروں میں گھنٹوں انتظار، اور ابھی امریکی صدارتی انتخابات میں 2 ہفتے باقی ہیں. عام حالات میں امریکہ کی 2/3 ریاستیں انتخابات کے دن سے ووٹرز کو کسی نہ کسی شکل میں ووٹ ڈالنے کی سہولت دیتی ہے. ارلی ووٹنگ میں ووٹرز خود ووٹنگ سینٹر جا کر یا بذریعہ ڈاک اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں. تاہم اس سال عالمی وبا کے باعث تمام ہی امریکی ریاستوں نے ارلی ووٹنگ اور خاص طور پر ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کی شرائط کو نرم کیا ہے. جتنا جلدی اتنا بہتر، اور مجھے انتخابات والے دن لمبی قطار میں انتظار نہیں کرنا پڑے گا. اگرچہ وبا کے خدشے کے پیش نظر سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول یا CDC نے ووٹرز کو مشورہ دیا ہے کہ جہاں ممکن ہو وہ بذریعہ ڈاک ووٹ ڈالیں. یہ خدشہ ان امریکی ووٹرز کو ووٹ ڈالنے کے لیے یہاں آنے سے باز نہیں رکھ پایا ہے. مجھے کووڈ کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے. میں ماسک پہنتا ہوں، میں سماجی فاصلہ رکھتا ہوں. مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کووڈ ہوگا. بروس ٹرین ریپبلکن پارٹی سے منسلک رضاکار ہیں. انہوں نے ارلی ووٹنگ کے دوران اتنے لوگ اس سے پہلے کسی الیکشنز میں نہیں دیکھے. حیرت انگیز ٹرن آؤٹ رہا. 19 ستمبر کو جب ورجینیا میں ارلی ووٹنگ کا آغاز ہوا تب سے یہاں روزانہ لوگ 3 یا 4 گھنٹے قطاروں میں انتظار کرتے ہیں. اگرچہ ریاست ورجینیا نے اپنے شہریوں کو میل ان بیلٹ یعنی بذریعہ ڈاک ووٹ ڈالنے کی سہولت فراہم کی ہے، یہاں آنے والے چند ارلی ووٹرز کا کہنا ہے کہ وہ خود یہاں آ کر یہ یقینی بنانا چاہتے تھے کہ ان کا ووٹ ضائع نہ جائے. Just because I've been hearing so many news that my vote might not be counted. صرف اس وجہ سے کہ میں نے بہت ساری خبریں سنی ہیں کہ شاید میرے ووٹ کو کسی غلطی کی وجہ سے شمار نہیں کیا جائے گا، لہٰذا میں ذاتی طور پر ارلی ووٹ ڈالنے آئی ہوں. میری رائے میں انتظار انتہائی ضروری ہے. بعد میں بھیڑ زیادہ ہوگی. میں یہ یقینی بنانا چاہتی تھی کہ میں جلد یہاں آؤں اور میرے ووٹ کی گنتی ہو. امریکہ کے صدارتی انتخابات میں اب 2 ہفتے رہ گئے ہیں اور اب تک کم از کم 1.80 کروڑ افراد اپنے ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں. بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ امریکہ کی تاریخ کے بہت اہم ترین انتخابات میں سے ایک ہیں جن پر پوری دنیا کی نظریں لگی ہیں. عمران جدون، وائس آف امریکہ، فیئرفیکس، ورجینیا. امریکہ میں 2016 کے صدارتی انتخابات کے بعد اس معاملے پر شور ہوا کہ روس نے مبینہ طور پر ان انتخابات میں مداخلت کی تھی. لیکن 2020 کے صدارتی انتخابات میں بیرونی ممالک کی مداخلت کے علاوہ امریکہ کے اندر سے انتخابی عمل میں خلل ڈالنے اور پرتشدد واقعات کے امکانات پر تشویش ظاہر کی جا رہی ہے. امریکی ذرائع ابلاغ میں حالیہ چند ہفتوں کے دوران ایسی رپورٹ شائع ہوئیں جن میں ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ 3 نومبر کو یعنی انتخابات والے دن اور اس کے بعد بھی مختلف علاقوں میں پرتشدد واقعات رونما ہو سکتے ہیں. ندیم یعقوب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں. ندیم، وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے؟
असद, जैसे कि हम अपने प्रोग्राम में बता चुके हैं कि पिछले चंद सालों के दौरान अमेरिका के जो हसास इदारे हैं, जो सिक्योरिटी से मुताल्लिक इदारे हैं, वो ये कह चुके हैं, बारहा कह चुके हैं कि अमेरिका को, जो अमेरिका की सलामती जो है उसको अमेरिका के अंदर से ज़्यादा ख़तरात हैं बजाय इसके कि जो बाहर से बैरूनी ममालिक में दहशतगर्द तंजीमें हैं उनसे। उनका कहना है कि जो यहाँ पर इंतहा पसंद ग्रोह हैं, नस्ल परस्त ग्रोह हैं, वहाँ से उनकी वजह से अमेरिका को जो है वो खदशा है, और यही खदशात जो हैं वो अब इलेक्शन के दिनों में भी उनका इजहार किया जा रहा है। हालिया कुछ महीनों में जब ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट का उसके मुजाहरे हुए तो उनके मुखालफत में कुछ ग्रोह जो हैं, इंतहा पसंद ग्रोह, शिद्दत पसंद ग्रोह, वो उनकी मुखालफत के लिए सामने आए, जो कि अमूमन सर ट्रंप की हमायत करते हैं। तो इसलिए जो हालात पैदा हो गए हैं उनकी वजह से खदशा है कि मुल्क में जो है वो इलेक्शन वाले दिन और उसके बाद कुछ जो है वो सर ट्रंप के बयानात, जो कि इलेक्शन की शफाफियत पर मबनी या उनके नताइज के हवाले से, उसकी वजह से भी ऐसे खदशात पैदा हो गए हैं कि अगर इलेक्शंस में डिले होता है तो शायद कुछ ग्रोह जो हैं वो वायलेंस की तरफ जा सकते हैं। और हाल ही में जो FBI के डायरेक्टर हैं उन्होंने भी सितंबर में जब यहाँ पर कांग्रेस में एक कमेटी का इजलास था तो उसमें भी उन्होंने बताया था कि इस तरह के वाक़यात जो हैं वो उनका खदशा है। तो नदीम, इंतखाबी अमल में कोई खलल ना पड़े और इसके अलावा मुमकिन तशद्दुद के वाक़यात जिनका खदशा भी जाहिर किया जा रहा है, इन पर कंट्रोल के लिए वफाकी हुकूमत और रियासती इदारों की तरफ से क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है? असद देखें, चंद हफ्ते पहले जो मिशिगन की गवर्नर हैं उनको अगवा करने का एक जो मंसूबा था उसको डिसरप्ट करते हुए FBI ने तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों को, अफराद को हिरासत में लिया। उनके बारे में कहा जाता है कि उनका ताल्लुक जो था वो एक इंतहा पसंद और नस्ल परस्त ग्रोह से, जो सफ़ेद बालादस्ती कायम करने के हवाले से जो उनके नज़रियात हैं उस ग्रोह से ताल्लुक था। तो जो इदारे हैं यहाँ पर वो अलर्ट हैं, उनको जो हालात की नज़ाकत है उसका भी अंदाज़ा है। और वॉइस ऑफ अमेरिका, एक FBI का एक अहलकार ने वॉइस ऑफ अमेरिका को अपना नाम जाहिर किए बगैर बताया कि उन्हें इस बारे में जो खदशात हैं वो मौजूद हैं, उनके पास रिपोर्ट्स हैं, और वो FBI और जो FBI जो है वो रियासती और मुकामी इदारों के साथ मिलकर से ये काम कर रही है, महफूज करने के लिए काम कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया नदीम, आपका बहुत शुक्रिया। नदीम याकूब हमारे साथ थे और हमें बता रहे थे कि जो सिचुएशन इस वक्त है उस हवाले से क्या ऑनवर्ड्स होने वाला है। सिंध के दारुल हुकूमत और पाकिस्तान के आबादी के लिहाज से सबसे बड़े शहर कराची को इन दिनों हीट वेव या सख्त गर्मी की लहर का सामना है। वैसे तो पूरा मुल्क ही माहौलियाती तब्दीलियों के असरात का सामना कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर होने की वजह से कराची में इन तब्दीलियों के असरात कुछ ज़्यादा ही महसूस किए जा रहे हैं। सिद्रा डार हमें मजीद बता रही हैं। पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में मौसम सरमा का आगाज हो चुका है, लेकिन कराची में अभी भी गर्मी बरकरार है। अक्टूबर के महीने में हीट वेव भी आ गई है, और अगर महकमा मौसमियात के हवाले से बात करें तो उनका कहना है कि मई के बाद अक्टूबर कराची के लिए दूसरा गर्म महीना साबित होता है। हीट वेव में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया, और 41 के दर्जा हरारत को वैसे भी कराची के शहरियों ने अक्टूबर में झेल भी लिया है। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि कराची को इतनी शदीद गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। कराची की अगर बात करें तो सबसे पहले 2015 में यहाँ के शहरियों ने हीट वेव का लफ्ज सुना था और उसका सामना किया था। ये 2015 जून में 5 दिन की हीट वेव थी जिसमें सैकड़ों लोग जान की बाजी भी हार गए थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो बतदरीज दर्जा हरारत बढ़ता गया और कराची के शहरियों को आदत होती गई कि वो अब इस बढ़ते दर्जा हरारत के साथ जिंदगी गुजारें। लेकिन माहिरीन इस हवाले से बहुत सारी राय रखते हैं। उनका कहना यह है कि दुनिया भर में जो आलमी मौसमियाती तब्दीली है उसका शिकार पाकिस्तान भी अब हो रहा है। अगर कराची की बात की जाए तो इतना बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, पूरे मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, मुआशी हब है। यहाँ पर अगर आप देखें, अगर अकब में ही देखें तो आपको इस वक्त लगेगा जैसे हम एक कंक्रीट के जंगल में खड़े हुए हैं। जो बिल्डिंग्स बन रही हैं उनका बराह रास्त सूरज के सामना होता है, जिससे हीट वो एब्जॉर्ब करते हैं, और उसके बाद रात तक जब दर्जा हरारत कम होने चाहिए तब भी दर्जा हरारत शहर का ज्यादा नजर आता है। जामिया कराची
कराची के शोबे माहौलियात के इंचार्ज हैं डॉक्टर जफर इकबाल, उनके मुताबिक बहुत से काम ऐसे अब भी किए जा सकते हैं जिसकी मदद से आप कराची में बढ़ने वाली गर्मी को किसी हद तक कम कर सकते हैं। वो इकदाम क्या हो सकते हैं? सबसे पहला इकदाम तो ये कि जो बुलंदोबाला इमारतें बन रही हैं उन्हें ग्रीन कवर दिया जाए, यानी कि पौधों से दरख्तों से ढांप दिया जाए ताकि धूप जो है वो बराह रास्त उन पे ना पड़े। बिल्डिंग्स के रंगों को हल्का रखा जाए। जो सड़कें तामीर की जा रही हैं, बनाई जा रही हैं, उनके किनारों पर दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएं ताकि वो शेड बना दें सड़कों के ऊपर, क्योंकि सड़कें भी हीट को बहुत ज़्यादा जज़्ब करती हैं। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर मेट हैं सरफराज साहब, उनका कहना यह है कि जर्मन वॉच का एक इदारा है जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में मौसमियाती तब्दीली के जो नताइज हैं उनको रिपोर्ट करता है। जर्मन वॉच के मुताबिक पाकिस्तान का मौसमियाती तब्दीली के एतबार से दुनिया में 8वां नंबर है जो इससे मुतासर हो रहा है। और कराची की अगर हम बात करें तो कराची में हमने गुज़श्ता चंद सालों में देखा है कि दर्जा हरारत भी बढ़ रहे हैं, रिकॉर्डेड बारिशें भी हो रही हैं और जो साइक्लोन्स हैं उनका भी सामना करना पड़ रहा है। तो यकीनी तौर पर ये कहा जा सकता है माहिरीन की अगर हम आरा को सामने रखते हुए कि कराची शहर एक तो गर्मी का भी शिकार है, दूसरा जो यहाँ के स्ट्रक्चर है और जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से भी इस दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है, जिसे आप अर्बन हीट आइलैंड भी कह सकते हैं, जिसमें इमारतों के इर्द गिर्द आपको ज़्यादा गर्माइश महसूस होती है। तो पूरी दुनिया में मेट डिपार्टमेंट इस हवाले से काफ़ी अहम इंफॉर्मेशन जो है वो पोर्ट्रे करता है और वो रिफ्लेक्ट करता है। पाकिस्तान का महकमा मौसमियात जो है वो भी मौसम का हाल बताने के अलावा मुख्तलिफ तरह का डेटा जमा करता है, जिसमें सबसे बड़ी एक चीज़ जो है वो बारिशी मिकदार की खबर रखना भी शामिल है। महकमा मौसमियात के पास मौसम से मुतालिक मालूमात इकट्ठी करने के लिए जदीद आलात के अलावा आज तक पुराने दौर के हालात, हाथ से चलने वाले आलात का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। बारिश को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास रेन गेजेस होते हैं और रेन गेजेस डिफरेंट काइंड के हैं। एक नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेजेस होते हैं और रिकॉर्डिंग के रेन गेजेस होते हैं। पाकिस्तान में दोनों जो है वो यूज़ हो रहे हैं, रिकॉर्डिंग वाले भी हो रहे हैं और नॉन रिकॉर्डिंग वाले भी यूज़ हो रहे हैं। ये इसके अंदर चला गया डाटा लॉगर में। डिफरेंट एरियाज़ में जो ऑब्जर्वेटरीज जब इंस्टॉल हुई कुछ उस टाइम के लगे हुए हैं, साथ साथ उनकी कैलिब्रेशन करनी पड़ती है या उनको वो काम नहीं करते तो फिर उनको चेंज करना पड़ता है। ये रूटीन जो है ये पाकिस्तान बनने से पहले की चल रही है और उसमें जब भी हमें ये फील होता है कि वो उसकी जो मेजरमेंट है उसमें कुछ थोड़ा सा एरर हमें नज़र आता है तो हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। एक हमारे पास मैनुअल रेन गेज होता है जिसे साइमन रेन गेज कहा जाता है, स्टैंडर्ड उसका नाम है। उसमें सिंपल आपके पास एक जार होता है, ऊपर फनल होती है और उस फनल से पानी नीचे आता है और जार में स्टोर हो जाता है। उसमें मैक्सिमम आप 100 मिलीमीटर पानी स्टोर कर 3 घंटे के बाद हम इसको जो है वो मेजर करते रहते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा शावर्स हों और हम ये फील करें कि विद इन 3 आवर्स 100 मिलीमीटर से भी ज़्यादा रेन होती है तो हम विद इन 3 आवर्स भी हम उसको मेजर कर सकते हैं। जब आप कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ यूज़ करते हैं वो सर्किट पे काम कर रही होती है। कई दफ़ा सर्किट आपको किसी भी वजह से ख़राब हो सकता है, वो ब्रेक हो सकता है, तो वो आपकी जो मेजरमेंट है उसको डिस्टर्ब कर सकता है। पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है वो स्टैंडर्ड है, साइमन रेन गेजेस है और वो मैनुअल है और उसी की बेस पे सारा डाटा रिकॉर्ड होता है। कि किसी उस जगह इंस्टॉल नहीं कर सकते जहाँ पे विंड का ज़्यादा प्रेशर हो या विंड की वजह से जो उसमें रेन का पानी आ रहा है वो डिस्टर्ब हो। अगर इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए, उसकी कैलिब्रेशन प्रॉपर हो, उसको मेजर करने के जो लोग हैं वो प्रोफेशनल हों और उसको इंस्टॉल प्रॉपर जगह किया जाए तो जो मैनुअल हैं वो दी बेस्ट हैं। ये हालात पाकिस्तान के मोर देन 100 जगह हमारी ऑब्जर्वेटरीज हैं और ये वहाँ पे मौजूद हैं और वो बाकायदा वहाँ से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जिसमें मेन सिटीज़ जो हैं वहाँ पे हमने डिजिटल भी लगाए हुए हैं और हमारे पास मैनुअल हैं वो भी लगे हुए हैं। लेकिन अगर आने वाले दौर में हमारे पास और डिजिटल आ भी गए तब भी हम इस मैनुअल को नहीं छोड़ सकते और मैनुअल को हमने और ज़्यादा एरियाज़ में लगाने हैं क्योंकि हमें इस वेरिएबिलिटी ऑफ रेन को बेहतर तरीके से ऑब्जर्व करना है। ये था आज का व्यू 360। अब तक के लिए इतना ही। असद खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।